Hello friends, welcome to TechCube Gate classes. My name is Professor Vivek Singh Rathore and I am Assistant Professor in Government Engineering College Bilaspur, Chhattisgarh under TechCube 3 project. I am teaching Signals and System subject in this video lecture series, and we have come to module 5 in which I am dealing with Laplace transform. We have already completed representation of signals in and systems, and then our LTI systems, and then Fourier series for periodic signal, and then Fourier transform for aperiodic signal. And now we are seeing more generalized transform, that is Laplace transform. And in the last lecture of Laplace transform, I have dealt with some Laplace transform of some standard signals and what is actually ROC concept and how Laplace transform is converted from Fourier transform. Why Fourier transform? What difficulty Fourier transform was facing? And then we have come to Laplace transform. So in the last lecture, I have completed with Laplace the unique ROC concept, means Laplace transform is only unique by considering its ROC. Now we'll see further. We'll discuss further for in this topic. See, we were talking about S plane. Okay, so what is actually S plane? S plane is something like this. See, this is your x-axis, this is your y-axis. Okay, this axis will take as real value, so this will be like sigma, and this will be the imaginary axis, this will be called as j omega. So wherever, as we have seen that we have considered S is equal to sigma plus j omega. If you have seen the last lecture, you would understand that we have considered sigma plus j omega as S. So this S is a combination of this real part and this imaginary part. So wherever S will be there, maybe your S will be this where somewhere S will be there, maybe in this where this time this position, wherever it will be there, it will be combination of real part and imaginary part. Okay, so sigma. But in this S plane, the real part will play the major role in ROC. If you have considered ROC, then for ROC, that is region of convergence, sigma, the real part will only play the significant role. That is real part of S. Real part of S will only play the significant role for considering ROC. So see, let's suppose we have seen delta t. Delta t, you have seen delta t Laplace transform was 1 and its ROC was entire S plane. Entire S plane means that for entire S plane, for entire sigma plus j omega, okay, it is the value is the delta t is converging and the value is 1. Okay, so what we can say that entire S plane means, here we can plot it as like this. Okay, we can plot it as like this. This is entire S plane. Actually, generally S plane is signified by this vertical lines. These vertical lines can be signified as S plane. So for representing entire S plane, we'll show it as like this. See, for let's suppose your signal was u of t. So what you have considered for u of t? U of t, we have seen that Laplace transform was for S is greater than 0. Real part of S is greater than 0 or sigma is greater than 0, as because u of t was right hand side signal. Okay, in the last lecture we have seen this. So its S plane will be your sigma is greater than 0. Sigma, this is sigma is equal to 0 value. Okay, so is greater than 0 means Laplace transform will be like this. Okay, Laplace transform will be like this value. If you see u of minus t, you will take, then Laplace transform will be from this side. So this is actually S plane, which is defined by rectangular strips. This is rectangular strip. So okay, now what I wanted to tell you is ROC or this S plane is also shifted somewhere. Like see, when our f of t has Laplace transform of f of s. Okay, then if we multiply f of t with some signal, let's suppose we are multiplying e to the power minus at, and now we are taking Laplace transform, your signal will be f of s plus a. Okay, multiplication with exponential signal like f of t, if you take e to the power at, then Laplace transform will be f of s minus a. Okay,
So this is the property that multiplication by exponential signal. This also you need to remember, because many times in seeing questions you will face this problem. So you should understand that whenever a signal in time domain is multiplied by e to the minus at, and we'll take Laplace transform, we'll get f of s plus a. So earlier this ROC was, this region of convergence was whenever real part of s is greater than 0. Okay, whatever maybe means we cannot say greater than 0, but its ROC will be considered as real part of s. But here, if ROC we need to consider, we will take as real part of s plus a. Okay, real part of s plus a may be greater than 0, less than 0, equal to 0, whatever. So here also real part of s minus a will be considered. So basically if you can see that ROC will, in this case ROC will be considered only the real part only for S only. But here S plus A is there, so here ROC will consider S plus A is greater than 0, less than 0, or something. So by multiplying a signal of exponential in the time domain, you can see the changes in the ROC also, and the expression in the frequency domain also. So what we get conclusion, like I am telling you conclusion, u of t will have Laplace transform of 1 by s. U of t will be have Laplace transform of 1 by s, and its ROC will be real part of s will be greater than 0. This will be greater than 0. Then this ut Laplace transform can be calculated. Means Laplace transform of ut can be calculated for only when s is greater than 0. For if s is less than, real part of s is less than 0, then its Laplace transform cannot be calculated. Okay. Now if you see e to the power minus at u of t Laplace transform, if you have been asked, then what you will tell? 1 by s plus a, because now only we have seen the property that whatever fs will be there, fs plus a will come. So here I have told you that ROC will also change. So here s plus a will be greater than 0. So s is greater than minus a. Real part of s is greater than minus a, you can consider. Okay, so if I can plot here ROC, if I can plot here ROC, you will tell that this ROC is s is greater than 0. This is like this. And then if I'll tell for this case what will be the ROC, you will tell s is greater than minus a. Let's suppose this is minus a, so whatever it will be like this, this will be like this. Okay, now we'll consider another case. We'll consider another case like e to the power minus at. Okay, and u of minus t and minus. Okay, now what you will do, we have seen in the last lecture that what it will happen, it will occur like, almost same, 1 by s plus a only, because minus of minus u of minus of u of minus t will be 1 by s only, but e to the minus at is there, so 1 by s plus a. But here real part of s plus a should be, because u of minus t is there, so it will be less than 0. So real part of s will be, can be considered as minus a. So here we can plot its ROC value. So s is equal to minus a, and it will consider as here, so we'll consider like this. This is the ROC for this signal. Let's suppose this signal will take e to the power a of t, e to the power a of t, u of minus t minus this one. Now you take Laplace transform. Okay, now you take Laplace transform, what you will get? You will get 1 by s of minus a. So here real part of s minus a will be less than 0, because minus t of there, so real part of s will be a. Okay, so you can plot here like this, s is equal to less than a, so here a is there, and here we'll do, this is the ROC for the signal. So now see, all four type of signal is there with you. Now you can judge, because I was telling you this four conclusion, to tell you one more thing. What is that? That see, you can see this type of signal u of t. U of t is there, its ROC is
going right hand side from greater than 0. Okay, greater than 0, but it is not touching uh, this sigma is equal to 0 line. This is equal to this is the line which is sigma is equal to 0 line, or you can say that it is a j omega line. But j omega, we are not concerned with j omega, we are concerned with sigma line, because ROC is considered by sigma. So it is a sigma is equal to 0 line, and it is going its ROC is sigma greater than 0, then only it is applicable. For sigma is equal to 0 line, it is not touching anything. Okay, first conclusion, you need to remember that u of t ROC is not touching sigma is equal to 0 line. It is going outside, right hand side to the sigma is equal to 0 line. E to the power minus at ut, if you see, then sigma is equal to 0 line is crossed. It is in, this ROC is involving, here I will write ROC does not include j omega axis or sigma is equal to 0 axis. Okay, here ROC include, ठीक है, यहाँ पे I will write ROC include j omega axis. Okay, fine. In this you can see that j omega axis is not included, I will write here not included, and in this point it is included, है ना, included I will write ROC is including j omega axis. Now what I wanted to tell you is that, see, wherever ROC is not including j omega axis, wherever ROC is not including j omega axis, there, if you can remember Fourier transform, that signal Fourier transform is not possible by direct technique. If you remember u of t, we have not calculated u of t Fourier transform by direct technique. We have used indirect technique. क्यों? क्योंकि u of t is not integrable. If you want from minus infinite to infinite u of t, it is not integrable. ये it is absolutely not integrable. तो फिर how can we calculate Fourier transform for it? And so that its ROC is not including j omega axis up, because in the last lecture you should understand the concept. In the last lecture what we have discussed, for Laplace transform or Fourier transform is a special case of Laplace transform for sigma is equal to 0. In the last lecture we have discussed sigma is equal to 0 वैल्यू पे ही सिर्फ फोरियर ट्रांसफॉर्म एग्जिस्ट करता है. लाप्लास ट्रांसफॉर्म इज मोर जनरलाइज्ड ट्रांसफॉर्म. तो देखिए ये सिग्मा इज इक्वल टू 0 लाइन को तो टच ही नहीं कर रहा है. इट इज नॉट टचिंग सिग्मा इज इक्वल टू 0 लाइन. सो अगर ये इट इज नॉट टचिंग, सो एब्सोल्युटली दैट सिग्मा इज इक्वल टू 0 लाइन पे ये कन्वर्ज नहीं होगा, और सिग्मा इज इक्वल टू 0 लाइन पे कन्वर्ज नहीं होगा. इसका मतलब है कि फोरियर ट्रांसफॉर्म तो सिग्मा इज इक्वल टू 0 पे ही एग्जिस्ट करता है. जब ये उसको इंक्लूड ही नहीं करेगा तो इसका क्या फोरियर ट्रांसफॉर्म लिखा जा सकता है? नहीं लिखा जा सकता. और यही तो हम लोगों ने फोरियर ट्रांसफॉर्म के चैप्टर में भी देखा था. वी हैव सीन इन द चैप्टर ऑफ फोरियर ट्रांसफॉर्म दैट वी कैन नॉट कैलकुलेट डायरेक्ट बाय डायरेक्ट टेक्निक ऑफ यू ऑफ टी. इसीलिए आपको ये समझना चाहिए कि दिस यू ऑफ टी फोरियर ट्रांसफॉर्म इज बाय डायरेक्ट टेक्निक इज नॉट पॉसिबल, because ROC does not include j omega axis, because it is not converging signal, इसीलिए ऐसा हो रहा है. अब देखिए e to the power minus at ut को अगर आप देखेंगे इसका ग्राफ को, तो इसका आप ग्राफ देखेंगे तो ऐसा गिरता चला जाता है. इट इज एब्सोल्युटली इंटीग्रेबल. दैट इज व्हाई इट्स ROC इज इंक्लूडिंग सिग्मा इक्वल टू 0 लाइन. आप इस चीज को याद रखिएगा. अब इसको देखते हैं, चलिए इसको देखते हैं. e to the power minus at u of minus t है ना. e to the power minus at u of minus t, कुछ ऐसा ग्राफ बनेगा, कुछ ऐसा ग्राफ बनता. e to the power माइनस, एक मिनट, e to the power माइनस at देखिए ऐसा बनता है पूरा, और सिर्फ u of माइनस t को लेगा तो ये कुछ ऐसा ग्राफ बनेगा, है ना. और माइनस अगर साइन कर लेंगे तो इसका उल्टा जस्ट आप ऐसे कर लीजिए, ऐसा सिग्नल है ना, ये ऐसा सिग्नल बनेगा. ठीक है, इसको हम लोग हटा देते हैं इसको. ठीक है, ये तो अब आप देखिएगा इस चीज़ को, क्या ये सिग्नल इंटीग्रेट होगा? ये तो बढ़ता ही चला जा रहा है, बढ़ते ही चला जा रहा है. तो दिस इज नॉट इंटीग्रेबल सिग्नल, और जो दिस सिग्नल इज नॉट इंटीग्रेबल उसका फोरियर ट्रांसफॉर्म लिया जा सकता है क्या? नहीं. तो देखिए यहाँ पे ROC भी सिग्मा इक्वल टू 0 लाइन को इंक्लूड ही नहीं कर रहा है. यहाँ पे देखिए e टू द पावर at u ऑफ माइनस टी, आप इसको बना के देखिए, चलिए, है ना. e टू द पावर at u ऑफ माइनस टी को e टू द पावर at ऐसे बनता है, और ये माइनस साइन, तो ये कुछ ऐसा बनेगा, है ना, ये ऐसा.
तो देखिए ये सिग्नल कहीं ना कहीं दिस सिग्नल इज डिक्रीजिंग टू जीरो वैल्यू, जब माइनस इनफाइनाइट में जाएंगे तो कहीं ना कहीं ये एब्सोल्युटली इंटीग्रेबल है, एब्सोल्युटली इंटीग्रेबल है। दैट इज व्हाई इट्स आरओसी इज इंक्लूडिंग सिग्मा इज इक्वल टू जीरो लाइन। तो अल्टीमेट कंक्लूजन क्या हुआ इस पूरे कथा कहानी से? व्हाट वी गॉट कंक्लूजन दैट, फर्स्ट कंक्लूजन दैट कि अगर इफ आर ओ सी इज इंक्लूडिंग j ओमेगा एक्सिस, ठीक है, इफ आर ओ सी इज इंक्लूडिंग j ओमेगा एक्सिस, देन क्या है, देन देन दैट सिग्नल is absolutely इंटीग्रेबल। ये हम लोगों को साफ साफ पता चल रहा है कि अगर इफ आरओसी इज इंक्लूडिंग, जहां जहां आप देखिए आरओसी जे ओमेगा एक्सिस या सिग्मा इज इक्वल टू जीरो लाइन को क्रॉस इंक्लूड कर रहा है अपने में, तो वो सिग्नल एब्सोल्युटली इंटीग्रेबल हो रहा है ना। या आप इसको उल्टा भी बोल सकते हैं कि जो सिग्नल एब्सोल्युटली इंटीग्रेबल होगा उसका आरओसी जे ओमेगा एक्सिस को इंक्लूड करेगा। आप वाइस वर्सा यू कैन राइट इट। तो if ROC is including j omega axis, then that signal is absolutely integrable। और इसका तात्पर्य क्या है? इसका तात्पर्य है कि अगर सिग्नल एब्सोल्युटली इंटीग्रेबल है, देन फोरियर ट्रांसफॉर्म कैन बी कैलकुलेटेड। ठीक है, फोरियर ट्रांसफॉर्म कैन बी कैलकुलेटेड बाय डायरेक्ट टेक्निक। आप डायरेक्ट टेक्निक से ही, मतलब सीधा सीधा तरीके से आप फोरियर ट्रांसफॉर्म निकाल सकते हो। ठीक है, और आप जानते हैं कि अगर ये जो एब्सोल्युटली इंटीग्रेबल का कंडीशन है ना, एब्सोल्युटली इंटीग्रेबल, यही कंडीशन अगर आप बोलेंगे तो यही कंडीशन ना, दिस इज द कंडीशन फॉर स्टेबल सिस्टम। स्टेबल सिस्टम आपको याद है क्या कि एक एलटीआई सिस्टम स्टेबल होने के लिए क्या होना चाहिए कि उसका इम्पल्स रिस्पॉन्स जो है वो एब्सोल्युटली इंटीग्रेबल होना चाहिए। यही था, वी हैव सीन इन द एलटीआई सिस्टम्स प्रॉपर्टी दैट फॉर अ स्टेबल सिस्टम, फॉर अ स्टेबल सिस्टम उसका जो माइनस इनफाइनाइट से इनफाइनाइट एच ऑफ टी है ना, डी टी है, एच माइनस इनफाइनाइट, ये आपका माइनस इनफाइनाइट से इनफाइनाइट एच ऑफ टी डी टी है, दिस शुड बी लेस देन इनफाइनाइट। ये कंडीशन होता है स्टेबल होने का। और ये सिस्टम, यही कंडीशन किसका स्टेबल होने का होता है? अगर आपको याद होगा फोरियर ट्रांसफॉर्म का भी, फोरियर ट्रांसफॉर्म एग्जिस्ट करने का कंडीशन क्या होता है? व्हाट इज द एग्जिस्टेंस कंडीशन फॉर फोरियर ट्रांसफॉर्म? दैट आपका माइनस इनफाइनाइट से इनफाइनाइट आपका एफ ऑफ टी ई टू द पावर माइनस जे ओमेगा टी डी टी ये है, ये आपका पूरा, ये आपका लगभग या एफ टी आप मान लीजिए, ये आपका लेस देन इनफाइनाइट होना चाहिए। देखिए, तो अब मैं आपको सीधा सीधा कहानी बता रहा हूं कि एक सिग्नल को या एक सिस्टम को, आप सिग्नल को तो ठीक है, सिग्नल आपका हो गया, एक सिस्टम का इम्पल्स रिस्पॉन्स, एक सिस्टम एलटीआई सिस्टम स्टेबल होने के लिए, ठीक है, फॉर कंडीशन ऑफ स्टेबल फॉर एलटीआई सिस्टम इम्पल्स रिस्पॉन्स शुड बी एब्सोल्युटली इंटीग्रेबल। ठीक है, और एब्सोल्युटली इंटीग्रेबल होगा, इसका मतलब है कि वो आरओसी को उसका आरओसी जे ओमेगा एक्सिस को इंक्लूड करेगा। सिंपल सा बात है। तो हम अगर साफ बात बोलें कि सीधा एक शब्दों में अगर मैं इसको बोलूं, कंडीशन फॉर स्टेबिलिटी, ये बहुत मतलब उम्दा किस्म का कंक्लूजन है जो आप यहाँ पे निकालना चाह रहे हो कि कंडीशन फॉर स्टेबिलिटी सीधा सीधा है लाप्लास ट्रांसफॉर्म में से। अगर आपको स्टेबिलिटी देखना है तो आप सीधा सीधा देख लीजिए, आरओसी शुड इंक्लूड जे ओमेगा एक्सिस। दिस कंक्लूजन इज 1000 रुपए का ये क्वेश्चन है, मतलब बता रहा हूँ, मतलब इतना महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। इट इज वेरी इंपॉर्टेंट कंक्लूजन और क्वेश्चन दैट अगर आपको सिस्टम स्टेबल चाहिए या फोरियर ट्रांसफॉर्म निकालना है, ठीक है, या आपको देखना है कि वो सिग्नल एब्सोल्युटली इंटीग्रेबल है, सीधा सीधा कॉन्सेप्ट है, आप लाप्लास ट्रांसफॉर्म का आरओसी चेक कर लीजिए। इफ इट इज इन्वॉल्विंग जे ओमेगा एक्सिस, इट इज satisfying every condition. Okay, second conclusion what we were trying to see is causal। अब causal क्या है भैया? देखिए, causal तो आपको मैंने बताया कि आपका जब कभी भी
आपका सिग्नल, आपका या सिस्टम जो भी बोल लीजिए, एच ऑफ टी इज इक्वल टू जीरो फॉर टी इज लेस देन जीरो। जब कभी भी ऐसा होता है कि आपका ये एच ऑफ टी एग्जिस्ट कर रहा है फॉर एच ऑफ टी इज इक्वल टू जीरो फॉर टी इज लेस देन जीरो, ठीक है। तो क्या होता है कि हम इसको बोलते हैं कि ये एक कॉजल है ना। अब मुद्दे की बात ये है, मुद्दे की बात ये है कि ये ऐसा सिग्नल कब होगा, जब सिग्नल राइट हैंड साइड होगा, है ना, राइट ऑलवेज। कि ये सिग्नल, इस सिग्नल को क्या बोलेंगे, इस सिग्नल को राइट साइडेड सिग्नल बोलेंगे, राइट हैंड साइडेड सिग्नल या राइट साइडेड सिग्नल, है ना। इस सिग्नल को राइट साइडेड सिग्नल या बोलेंगे। अब मुद्दे की बात यह है कि अगर आपका कोई भी सिस्टम आप देख लीजिए, ये सिग्नल आप देख लीजिए, यू ऑफ टी था, यू ऑफ टी कैसा है, ओरिजिनली ये राइट हैंड साइड सिग्नल है, तो इसका आरओसी कैसा आया, राइट हैंड साइड। ये सिग्नल कैसा है, -8 ut, इट इज अ राइट हैंड साइड सिग्नल, सो इसका आरओसी कैसा है, राइट हैंड साइड जा रहा है, भले -a से जा रहा है बट जा रहा है। -8 u ऑफ -3, ये कैसा सिग्नल है, लेफ्ट हैंड साइडेड, इसका आरओसी कैसा है, लेफ्ट हैंड साइडेड। इसका आप देखिए e⁻80 u ऑफ -3, ये लेफ्ट हैंड साइडेड, इसका आरओसी भी लेफ्ट हैंड साइडेड, भले a से जा रहा है। तो इसका मतलब ये है कि कोई सिग्नल अगर राइट हैंड साइडेड सिग्नल है तो उसका आरओसी भी राइट हैंड साइडेड होगा, आरओसी विल ऑल्सो बी राइट साइडेड सिग्नल, आरएस सिग्नल लिख देता हूँ, ठीक है। ये आपको समझ में आ गया। अच्छा, अब मुद्दे की बात ये है कि मुद्दे की बात ये है कि आपको दोनों कंडीशन पता चल गया। फॉर स्टेबल आपका आरओसी शुड इन्वॉल्व जे ओमेगा एक्सिस, ये फर्स्ट हमारा कंडीशन है। फॉर कॉजलिटी या कॉजल हम लोगों को क्या है, आरओसी शुड बी राइट साइडेड, है ना, राइट साइडेड, ये हमारा दूसरा कंडीशन है। अब कोई सिस्टम है, मान लीजिए, है ना, एक एलटीआई सिस्टम है जिसको हम कॉजल और स्टेबल दोनों बनाना चाहते हैं, ठीक है, कॉजल और स्टेबल दोनों बनाना चाहते हैं, तब हम क्या करेंगे, कॉजल और स्टेबल दोनों के कंडीशन के लिए क्या होना चाहिए, देखिए कि आपका आरओसी क्या होना चाहिए, इस पॉइंट को जे ओमेगा एक्सिस को इंक्लूड करे और स्टेबल हो, सॉरी, स्टेबिलिटी के लिए जे ओमेगा एक्सिस को इंक्लूड करे, एंड फॉर कॉजलिटी इट शुड बी राइट हैंड साइडेड। तो अगर देखिए यहाँ से अगर राइट हैंड साइडेड होगा तो आप देखिए यहाँ से अगर राइट हैंड साइडेड, यहाँ से मान लीजिए अगर ऐसे होगा तो क्या ये जे ओमेगा एक्सिस को टच कर रहा है, क्या नहीं कर रहा है, लेकिन है कॉजल, ठीक है, ये कॉजल है तो हम इसको, लेकिन स्टेबल तो नहीं है ना, तो इसको हम मिटा देते हैं, ठीक है, इसको हम मिटा देते हैं और फिर हम दोबारा चेक करते हैं, एक मिनट, दोबारा चेक करते हैं। अगर इस पॉइंट से, मान लीजिए इस पॉइंट से अगर ऐसा होगा आपका आरओसी, इट इज कॉजल और स्टेबल, हाँ इट इज कॉजल बट इट इज स्टेबल, क्या है, क्या नहीं, ये तो सिग्मा जे ओमेगा एक्सिस को इंक्लूड नहीं किया ना, जे ओमेगा एक्सिस के बाद ये राइट हैंड साइडेड चल रहा है, तो दिस इज ऑल्सो नॉट इन्वॉल्व, ओके, तो हम इसको भी हटा देते हैं, ये कंडीशन भी नहीं सेटिस्फाइड होती है। तो अब आपको तीसरा कंडीशन बोलता हूँ कि अगर आपका सिग्नल, मतलब आपका आरओसी ऐसा है और यहाँ से आपका ऐसा ऐसा लेके चल रहा है, अब बताइए कि ये this ROC is causal also and stable also because it is involving j omega axis। तो ये कब हो सकता है, देखिए कोई भी ROC is always bounded by the pole, ठीक है, ये चीज को याद रखिएगा, ROC is always bounded by the pole, है ना, मतलब ROC हमेशा पोल से बाउंडेड रहता है और ROC कैनॉट इंक्लूड पोल, ठीक है, ROC कैनॉट इंक्लूड पोल, है ना, ये दो लाइन को आप याद रखिएगा, कैनॉट इंक्लूड पोल, इस दो लाइन को याद रखिएगा, ये पूरी कहानी है ROC की, कि ROC के अंदर में कभी भी कोई पोल नहीं आ सकता। फर्स्ट कंडीशन, ROC कैनॉट इंक्लूड एनी पोल, ROC is always bounded by the pole, हमेशा bounded by the pole होता है। तो अब आप ये बताइए कि देखिए ये तो आपको कंडीशन समझ में आ गया कि ROC ऐसा ही होना चाहिए अगर LTI सिस्टम वी नीड कॉजल एंड स्टेबल, है ना, ऐसा ही होना चाहिए। अच्छा, तो अब क्या करें, ऐसा करने के लिए
अब देखिए, अगर पोल यहाँ तो आ नहीं सकता, ठीक है, अगर पोल यहाँ पे आ जाएगा तो ये कंडीशन सेटिस्फाई नहीं होगा, क्योंकि आरओसी कैन नॉट इंक्लूड पोल। आर पोल यहाँ पे भी नहीं आ सकता, पोल हमेशा यहाँ पे आएगा या फिर यहाँ पे आएगा, इसके अंदर तो नहीं आ सकता, पोल बाउंडेड भी हो सकता है। तो इस पॉइंट पे भी पोल को आप कंसीडर कर सकते हैं, इस पॉइंट को भी आप कंसीडर कर सकते हैं, बट इसके इधर आप पोल को कंसीडर नहीं कर सकते। आप इस चीज को बस याद रखिएगा कि आप इस पॉइंट पे पोल को कंसीडर नहीं कर सकते, क्योंकि आरओसी कैन नॉट इंक्लूड जे ओमेगा एक्सिस। तो आपको ये चीज को याद रखना है कि आपका पोल्स मैक्सिमम से मैक्सिमम इस पॉइंट पे हो सकता है, इस पॉइंट पे हो सकता है, या फिर उसके इधर इधर लेफ्ट हैंड साइड पे हो सकता है, इधर नहीं हो सकता, बिकॉज आरओसी डज नॉट इंक्लूड पोल। तो अब फाइनल हम लोग निकालते हैं कि भैया ये पोल किस साइड में आया। अगर अपन इस साइड में प्लॉट करते हैं तो आपका पोल किस साइड में आया, पोल आया है आपका लेफ्ट हैंड साइड पे, पोल लेफ्ट हैंड साइड पे, लेफ्ट हैंड साइड पे। इसीलिए आप पूरा कंट्रोल सिस्टम पढ़ते आए हैं, ठीक है, नेटवर्क एनालिसिस पढ़ते आए हैं, और आपको हर कोई एवरीवन हैव टोल्ड यू दैट पोल्स for a stable and causal LTI system, poles should be in the left hand side। आप पूरा कंट्रोल सिस्टम यही सब से तो पढ़े हैं स्टेबिलिटी के लिए कि पोल शुड बी इन द लेफ्ट हैंड साइड, लेफ्ट हैंड साइड, लेफ्ट हैंड। why pole should be in left hand side, this is the condition why pole should be in the left hand side। अब मैं आपको सिंपल कंडीशन बता रहा हूँ कि देखिए, आपके पोल्स अगर इधर 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 जितने भी पोल्स हैं मान लीजिए आपके सिस्टम में, अब मान लीजिए इन सब का पोल्स का मान लीजिए सब राइट हैंड साइड वैल्यू है, तो आप एक काम करते हैं, यहाँ से ऐसे लेते हैं और यहाँ से आरओसी अपन लेते हैं, दिस इज द आरओसी। ऐसा कंडीशन है तो हम इस सिस्टम को बोल सकते हैं कि पोल्स should be in the left hand side, should be in the left hand side of S plane। ये जो S प्लेन है उसका लेफ्ट हैंड साइड पे होना चाहिए पोल, लेफ्ट हैंड साइड ऑफ जीरो, मतलब ये जे ओमेगा एक्सिस के लेफ्ट हैंड साइड पे होना चाहिए, ठीक है। पहला कंडीशन। दूसरा कंडीशन है, ठीक है, आर ओ सी शुड बी राइट हैंड साइड, है ना, एंड इंक्लूड जे ओमेगा एक्सिस। ये कंडीशन है फॉर a system, for a LTI system to be causal and stable। अब आप इस चीज को अच्छे से समझ पा रहे होंगे। यही समझाने के लिए मैं इतना देर से आपको इतना कथा कहानी सुनाया जा रहा था कि ये सब, क्योंकि हम लोगों ने शुरू ही इसी से किया। आपको 4 सिग्नल बताया, 4 सिग्नल से मैंने आपको 4 अलग अलग प्रकार की वैरायटी बताई, और उसके बाद आपको बताया कि कैसे आरओसी जे ओमेगा एक्सिस इंक्लूड करना ये समांतर है, इक्विवेलेंट है। it is equivalent to signal absolutely integrable, which is equivalent to Fourier transform, which can be calculated by direct technique, and which is equivalent to condition for stable system। तो एंड ये है, तो इससे हम लोगों ने ये सब चीज निकाला और फिर पता किया कि एक सिस्टम को कॉजल होने के लिए क्या चाहिए, स्टेबल होने के लिए क्या चाहिए, और एक सिस्टम को कॉजल और स्टेबल दोनों होने के लिए क्या चाहिए। तो सिंपल बात है कि पोल शुड बी इन द लेफ्ट हैंड साइड ऑफ द एस प्लेन। ओके, so up now after reading all the conclusion, okay, आप इस पॉइंट को, सारे पॉइंट को you should note down every conclusion what I have told you till now, because it will help you in the exam। so see, now we'll move further and we'll see that अगर हमारे पास जैसे 2 सिग्नल्स आ गए एक साथ और उसका कॉम्बिनेशन आ गया, तब क्या करें, तब कौन सा आरओसी लें। जैसे कि आपको मैं ऐसा बोलता हूँ कि e⁻⁻2t u ऑफ t है, इसका आपको लाप्लास ट्रांसफॉर्म निकालना है। तो यू टेल u ऑफ t 1/s होता है, तो 1/s+2 होता है ना। ओके, ठीक है। अब हम क्या कर सकते हैं, इसका आरओसी कैसे निकालें, रियल पार्ट ऑफ s+2 इज ग्रेटर देन 0, है ना। तो आपका क्योंकि u ऑफ t है तो ग्रेटर देन 0 आ जाएगा, तो रियल पार्ट ऑफ s इज ग्रेटर देन -2, तो इसका आरओसी कुछ ऐसा आ जाएगा, ठीक है। -2 कुछ यहाँ पे है, -2 एंड इट शुड बी ग्रेटर देन 0, तो हम यहाँ पे ऐसे करेंगे, ये है इसका आरओसी, ठीक है। ओके, वैसे ही अगर आपको कोई जैसे ये आ गया e⁻3t u ऑफ, ठीक है, t,
अब आप क्या करेंगे, इसका लाप्लास ट्रांसफॉर्म, इसका लाप्लास ट्रांसफॉर्म होगा 1/s (-3) s-3। तो इसका आप कर सकते हैं रियल पार्ट ऑफ s-3 इज ग्रेटर देन 0, तो रियल पार्ट ऑफ s इज ग्रेटर देन 3। तो आप इसको कैसे प्लॉट करेंगे बताइए। देखिए आप इसको ऐसा प्लॉट करेंगे, ठीक है, ये हो गया, और s इज ग्रेटर देन 3, मतलब यहाँ 3 है तो यहाँ 3 का ग्रेटर देन मानेंगे। देखिए बोथ सिग्नल्स, ठीक है, बोथ सिग्नल्स वर क्या है, राइट हैंड साइडेड सिग्नल है ना, बोथ सिग्नल्स वर राइट हैंड साइडेड, सो देयर आरओसी वाज आल्सो राइट हैंड साइडेड। बट अब अगर ऐसा कंडीशन अगर आपको आ जाए कि आपको बोला जाए e⁻⁻2t u ऑफ t प्लस e⁻3t u ऑफ t, इसका आप लाप्लास ट्रांसफॉर्म निकालिए, तो आप क्या निकालेंगे, आप बोल सकते हैं इसका लाप्लास ट्रांसफॉर्म होगा 1/s ऑफ s+2 प्लस 1/s-3। अब इसका कॉम्बिनेशन आरओसी कहाँ बनेगा, तो इसका कॉम्बिनेशन आरओसी देखिए, इसका कॉम्बिनेशन आरओसी कुछ ऐसा बनेगा कि देखिए एक मिनट, ठीक, ओके फाइन, दिस इज देयर एंड नाउ व्हाट विल प्लॉट। देखिए दोनों का बेसिकली दोनों के पोल्स कहाँ कहाँ पे हैं, पोल्स दोनों के अगर आप देखें तो आप यहाँ पे देखिए ये सिग्मा लाइन है, ये ओमेगा लाइन है, इसके पोल्स अगर आप देखें तो ये इसका पोल्स कहाँ पे है, -2 पे है ना, s+2 है तो -2 पॉइंट पे इसका पोल्स है, s इज इक्वल टू -2 है ना, और यहाँ पे इस ये पोल कौन सा है, s इज इक्वल टू 3 पे, तो s इज इक्वल टू 3 पे इसका पोल एग्जिस्ट कर रहा है। अब क्या करें, अब कायदे से वो दोनों सिग्नल राइट हैंड साइडेड आरओसी है, तो इसका भी अगर राइट हैंड साइडेड आरओसी, लेकिन अगर यहाँ से हम आरओसी ऐसे बनाना चालू कर देंगे तो दिस पोल विल बी इंक्लूडेड इन दैट आरओसी, ये तो फिर गलत हो जाएगा, आरओसी कैन नॉट इंक्लूड एनी पोल। तो क्या करें, लेकिन है तो राइट हैंड साइडेड, तो वेन एवर दिस टाइप ऑफ सिग्नल्स विल कम देन व्हाट यू नीड टू डू, आप एक ही आरओसी बनाइए, आप एक ही आरओसी बनाइए, जो भी सबसे लास्ट होगा उसके आप राइट हैंड साइड में आप इसको आरओसी को ऐसे प्लॉट कर सकते हैं, दिस इज द फाइनल आरओसी। ठीक है, मतलब देखिए इधर से अगर हम राइट हैंड साइडेड में कर, लेफ्ट हैंड साइड कर ही नहीं सकते थे क्योंकि सिग्नल राइट हैंड साइडेड है, तो लेफ्ट हैंड साइड कैसे कर देते हैं, राइट हैंड साइड में करेंगे तो ये s इज इक्वल टू 3 वाला जो पोल है इट विल बी इंक्लूडेड इन दैट आरओसी, तो ये आरओसी को हमको छोड़ना पड़ेगा एंड दिस आरओसी विल बी लाइक दिस, ओके। तो ये फाइनल हमारा आरओसी है 2, इसको हम लोग बेसिकली देखिए ये आरओसी 2 राइट साइडेड सिग्नल जब ऐड होता है तो उनके आरओसी भी राइट साइडेड ही होते हैं। पहली बात तो अगर राइट साइडेड 2 सिग्नल है तो आरओसी भी राइट साइडेड होगा, और आरओसी शुड बी बाउंडेड बाय पोल, तो पोल से ही बाउंडेड होगा, वो यहाँ पे आ जाएगा। ठीक है, अब देखिए तो आप इसमें कंक्लूजन ये निकाल सकते हैं कि आरओसी टोटल आरओसी कब होगा, जैसे ऐसे तो बहुत सारे सिग्नल्स का कॉम्बिनेशन हो सकता है, तो जो भी सबसे ग्रेटेस्ट पोल होगा, ठीक है, ग्रेटेस्ट पोल के राइट हैंड साइड पे ही आरओसी एग्जिस्ट करेगा। ठीक है, आपको मेरे ख्याल से ये वाला पॉइंट समझ में आया होगा। वैसे ही अगर दो लेफ्ट हैंड साइड सिग्नल आ जाए, ठीक है, कोई मान लीजिए ये सिग्नल कुछ ऐसा था जिसमें लेट सपोज कि ये u ऑफ माइनस टी था, u ऑफ माइनस टी था, ऐसा कुछ था, तब आप क्या करेंगे, इसी सिग्नल को हम बना देते हैं -e⁻−2t u ऑफ माइनस टी, ठीक है, और इसी को लिख लेते हैं -e⁻3t u ऑफ माइनस टी। आपको पता है कि ये दोनों सिग्नल का आउटपुट सेम आने वाला है क्योंकि ये एक्सप्रेशन सेम ही आएगा। देखिए ये माइनस माइनस हो जाएगा तो s+2 हो जाएगा प्लस 1/s-3 हो जाएगा। ठीक है, ठीक, तो देखिए दोनों का एक्सप्रेशन सेम है बिल्कुल। कल यस्टरडे वन स्टूडेंट वाज आस्किंग इन टेलीग्राम ग्रुप आल्सो दैट कि सर क्या वो u ऑफ t के लिए एप्लीकेबल है या दूसरे के लिए, एवरी सिग्नल, मतलब वो जनरलाइज्ड है। देखिए ये दोनों का कॉम्बिनेशन वाज दिस लाप्लास ट्रांसफॉर्म, बट इस सिग्नल का कॉम्बिनेशन भी यही लाप्लास ट्रांसफॉर्म देता है, लेकिन बोथ आर डिफरेंट इन देयर आरओसी, आरओसी में डिफरेंट होता है। तो इसका हम लोग आरओसी चलिए प्लॉट करते हैं। इसका आरओसी कुछ ऐसा होगा, देखिए पोल्स कहाँ पे है, s इज इक्वल टू -2 पे और s इज इक्वल टू 3 पे। अब देखिए बोथ आर लेफ्ट हैंड साइडेड सिग्नल, ये दोनों लेफ्ट हैंड साइडेड सिग्नल है, तो कायदे से
आरओसी इधर बनेगा, इसका भी आरओसी इधर बनेगा। लेकिन अगर इधर से मैं आरओसी ले लिया s इज इक्वल टू 3 से, देन s इज इक्वल टू -2 पोल विल ऑल्सो गेट इंक्लूडेड इन दैट आरओसी, और दिस कैन नॉट हैपन। तो हम क्या करेंगे, फिर हम इस पॉइंट से आरओसी लेंगे, ठीक है, इस पॉइंट से हम आरओसी लेंगे और इस पॉइंट को अभी छोड़ देंगे। तो अल्टीमेटली क्या होगा कि वेन एवर टू लेफ्ट हैंड साइडेड सिग्नल्स आर एडेड, their combination ROC is also left hand sided and the pole will be after the जो सबसे आप बोल सकते हैं कि छोटा, सबसे छोटा नेगेटिव एक्सिस पे आपका पोल होगा, वो उस पोल को कंसीडर किया जाएगा, ठीक है, सबसे लेफ्ट मोस्ट पोल को कंसीडर किया जाएगा, क्योंकि उससे पहले वाले कहीं किसी भी पोल को कंसीडर करेंगे तो बाकी के पोल उसके अंदर आ जाएंगे, तो वो नहीं कर सकते, है ना। अच्छा, अब हम एक ये वाला पॉइंट आप समझ में आ गया कि टोटल दोनों राइट हैंड साइडेड है, दोनों लेफ्ट हैंड साइडेड है। अब अगर मैं आपको ऐसा बोल दूं कि एक राइट हैंड साइडेड है, एक लेफ्ट हैंड साइडेड है, मतलब जैसे मैं इसी का एग्जांपल ले लेता हूँ, e टू द पावर -2t u ऑफ t, e टू द पावर -2t u ऑफ t, ठीक है, और यहाँ पे अपन ले लेते हैं -e टू द पावर 3t u ऑफ -t। अब इसका आप ग्राफ देखिए, इसका लाप्लास ट्रांसफॉर्म आप देखेंगे तो आपको मिलेगा 1/s+2 और इसका आपको मिलेगा 1/s-3, बिल्कुल सेम मिला क्या। अब देखिए हर केस में हम लोगों को लाप्लास जो एक्सप्रेशन है वी आर गेटिंग द सेम, बट इसका आरओसी कैसा होगा, इसका आरओसी आप प्लॉट करते हैं, चलिए दिस आरओसी सिग्मा, दिस आरओसी इज j ओमेगा, ओके। नाउ सी पोल कहाँ पे है, पोल कहाँ पे है, पोल इज एट s इज इक्वल टू 2 पे है, s इज इक्वल टू -2 पे है, इसको हम मिटा देते हैं, s इज इक्वल टू -2 और s इज इक्वल टू 3 पे है। अब हम इसको बोलते हैं, देखिए s ऑफ -2 पे ये सिग्नल कैसा है, राइट हैंड साइडेड, तो इसका आरओसी कैसे बनने वाला है, राइट हैंड साइडेड, इस तरफ ऐसा ऐसा बनेगा, है ना, इस तरफ बनेगा। और s इज इक्वल टू 3, ये वाला पोल कैसा है, ये लेफ्ट हैंड साइडेड है, तो इसका जो वो बनेगा आरओसी वो लेफ्ट हैंड साइडेड बनेगा, ठीक है, इसका लेफ्ट हैंड साइडेड बनेगा। तो यू कैन सी दैट आरओसी इज बाउंडेड बिटवीन पोल्स, आरओसी दो पोल्स के बीच में है, और जब कभी भी ऐसा होता है, कभी भी ऐसा होता है, तब हम ये मान सकते हैं कि आपका जो सिग्नल है इसमें बोथ टाइप के सिग्नल मिलते हैं, है ना, बोथ आपके राइट साइडेड और लेफ्ट साइडेड, मतलब इसको आप बोल सकते हैं कि ये जो सिग्नल है ये टू साइडेड सिग्नल है, ये जो कॉम्बिनेशन आपका आ रहा है वो टू साइडेड सिग्नल है, ठीक है। और इसका जो आरओसी होगा, इस टू साइडेड सिग्नल का जब आरओसी बनेगा, ठीक है, टू साइडेड सिग्नल का आरओसी जब बनेगा, वो कुछ भी बन सकता है, लेकिन अभी ये वाले कंडीशन के लिए हम लोग ये मान रहे हैं कि ये एक रेक्टेंगुलर फाइनाइट रेक्टेंगुलर स्ट्रिप बनेगा, फाइनाइट रेक्टेंगुलर स्ट्रिप, ठीक है, इस बात को याद रखिएगा। और देखिए अभी तक हम लोग देख रहे थे क्या ये कॉम्बिनेशन जे ओमेगा एक्सिस को कंसीडर किया था क्या, जे ओमेगा एक्सिस इज नॉट कंसीडर्ड, तो आप इसका कॉम्बिनेशन को आप नहीं बोल सकते कि ये कॉम्बिनेशन एक एब्सोल्युटली इंटीग्रेबल है, और आप इसको कॉजल सिस्टम बोल सकते हैं, यू कैन से दैट दिस इज अ कॉजल सिस्टम, बट दिस इज नॉट अ स्टेबल सिस्टम बिकॉज इट इज नॉट इंक्लूडिंग जे ओमेगा एक्सिस। ये वाला सिस्टम, ये वाला जो अगर आपका सिग्नल है, ठीक है, अब देखिए या इसको इम्पल्स रिस्पॉन्स मान लीजिए सिस्टम का, ठीक है, आप इसको देखिए, दिस इज अ नॉट कॉजल सिस्टम एंड इट इज नॉट अ स्टेबल सिस्टम आल्सो, बिकॉज ये ना ही राइट हैंड साइडेड है, ना जे ओमेगा एक्सिस को कंक्लूड किया हुआ है। आप इसको इस सिग्नल को देख लीजिए, ये वाला जो पोर्शन है टू साइडेड सिग्नल, ये है आपका राइट हैंड साइडेड भी है, लेफ्ट हैंड साइडेड भी है, ठीक है, अल्टीमेटली मतलब राइट हैंड साइडेड तो है ना कहीं कॉर्डियल तो है, लेकिन मुद्दे की बात है कि ये जे ओमेगा एक्सिस को इंक्लूड किया है, इट इज इंक्लूडिंग जे ओमेगा एक्सिस, देयरफॉर इट कैन बी सेड एज कि ये एक स्टेबल सिस्टम होगा, दिस सिस्टम कैन बी सेड एज ये स्टेबल सिस्टम होगा, बिल्कुल आप इसका वो निकाल सकते हैं कहीं ना कहीं, ठीक है। उसके बाद हम आगे आते हैं और हम एक और सिस्टम, आपको यही बात करता हूँ, इसी सिस्टम की ही एक और की बात करता हूँ। जैसे इस सिग्नल को मैं ऐसे मान लिया -e⁻⁻2t u ऑफ -t, ठीक है, और प्लस हम मान लिए e⁻3t u ऑफ t। अब आप इसका एक्सप्रेशन देखिए, इसका एक्सप्रेशन क्या होगा, 1/s+2 ही होगा,
प्लस 1/x-3। देखिए सारे एग्जाम्पल का हमारा लैप्लास एक्सप्रेशन एकदम सेम आ रहा है, अलग अलग कहाँ पे हो रहे हैं, अलग अलग उनके आरओसी के टर्म्स में हम लोग हो रहे हैं, है ना, आरओसी के टर्म में। तो हम लोग यहाँ पे ऐसा प्लॉट बनाते हैं सिग्मा और जे ओमेगा, ठीक है। और अब हम लोग देखते हैं कि यहाँ पे पोल्स कहाँ पे, x इज इक्वल टू -2 पे और s इज इक्वल टू 3 पे। अब आप बताइए, दिस इज लेफ्ट हैंड साइडेड सिग्नल, तो इसका आरओसी कहाँ बनेगा, लेफ्ट हैंड साइडेड। इस सिग्नल का ये कैसा है, ये राइट हैंड साइडेड है, तो इसका वो कैसा बनेगा, राइट हैंड साइडेड। देखिए ये भी टू साइडेड है, कायदे से ये भी टू साइडेड है, लेकिन इसका जो आरओसी, आरओसी डज नॉट इंक्लूड जे ओमेगा एक्सिस। सबसे बड़ी बात है कि इसका आरओसी है जो जे ओमेगा एक्सिस को इंक्लूड नहीं करता है, ठीक है। और ऐसा जब आता है पोर्शन तो आप इसको बोल सकते हैं कि ये नॉट डिफाइंड है, इसका लाप्लास ट्रांसफॉर्म या ये नॉट डिफाइंड है, इसमें आप लाप्लास ट्रांसफॉर्म डिफाइन नहीं कर सकते। या ये बेसिकली बोल सकते हैं कि अगर आपका आरओसी फॉर दिस कंडीशन ओनली योर लाप्लास ट्रांसफॉर्म इज नॉट डिफाइंड, ये चीज को याद रखिएगा, है ना। ये चार कंडीशन मैंने आपको बताया, चारों कंडीशन आपको समझ में आता है तो आप बहुत बड़े से बड़ा क्वेश्चन इसको बना सकते हैं, ठीक है। और ट्रिकी क्वेश्चन यहीं पे रहता है अगर आप इसको समझे तो चलो हम लोग कुछ और एग्जाम्पल लेके चलते हैं और उसको और हम लोग समझने की कोशिश करते हैं। जैसे आपको ये क्वेश्चन ना अभी कुछ साल पहले गेट में भी पूछा गया था क्वेश्चन, कि एक आपको गेट पल्स दिया हुआ है, ठीक है। आपको गेट पल्स तो आपको पता है, गेट पल्स है ना, गेट पल्स आपको पता है। आप हमेशा लेते थे, जैसे फोरियर ट्रांसफॉर्म में कैसे लेते थे, -t/2 से t/2 लेते थे, याद है, a लेते थे। और इसका फोरियर ट्रांसफॉर्म आप कैसे लेते थे, फोरियर ट्रांसफॉर्म a इंटू टी होता था, सैम्पलिंग ऑफ ओमेगा इंटू t/2। आपको ये पता है कि ये सिग्नल का हमने डायरेक्ट टेक्निक से निकाला था, ये चीज़ को डायरेक्ट टेक्निक से कैसे निकाल पाया था, मतलब ये कहीं ना कहीं एब्सोल्युटली इंटीग्रेबल है। अरे क्यों नहीं है एब्सोल्युटली इंटीग्रेबल, एक पर्टिकुलर फाइनाइट टाइम एक्सिस पे फाइनाइट एम्पलीट्यूड का है तो एब्सोल्युटली इंटीग्रेबल तो है ही। अगर आप इसको तो हम मुद्दे की बात है कि लाप्लास ट्रांसफॉर्म निकाल के देखते हैं। देखिए लाप्लास ट्रांसफॉर्म का सबसे पहला कंडीशन ये चेक करते हैं कि ये एग्जिस्ट करेगा कि नहीं। हालांकि हमको मालूम है करेगा क्योंकि फोरियर ट्रांसफॉर्म निकाल चुके हैं, बट विल सी कि एफ टी इंटू ई टू दावर माइनस सिग्मा टी, इसका हम ये देखते हैं कि ये इज लेस देन इनफाइनाइट है कि नहीं। ये कंडीशन है ना, आपका याद है, कंडीशन फॉर आपका लाप्लास ट्रांसफॉर्म एग्जिस्ट करने का कि नहीं। तो आप इसको देखिए, माइनस इनफाइनाइट से इनफाइनाइट क्या जाना, इसको -t/2 से t/2 आप ले लीजिए, ठीक है, -t/2 से t/2। एफ टी कितना है, एफ टी की वैल्यू कितनी है, ए है मान लीजिए, तो ए आप ले लीजिए, ए है ना, इंटू ई टू दावर माइनस सिग्मा टी, है ना, ए इंटू ई टू दावर माइनस सिग्मा टी हो गया। ओके, तो ऑब्वियसली बात है कि एक पर्टिकुलर से इतना पर्टिकुलर को तो आप इंटीग्रेट कर ही सकते हैं, ये हमेशा लेस देन इनफाइनाइट आएगा। और जहां ये आया लेस देन इनफाइनाइट, देखिए मतलब कैसे आएगा, आप इसको सिग्मा की वैल्यू अलग अलग रख लीजिए, सिग्मा इज लेस देन 0, सिग्मा इज ग्रेटर देन इक्वल टू 0, सिग्मा इज ग्रेटर देन 0। आप रखेंगे तो क्या होगा, वैल्यू ये आ जाएगा -t/2 से t/2, और आपका आ जाएगा लेस देन 0 है तो e टू दी पावर, देखिए e टू दी पावर ये माइनस में आ जाएगा तो e टू दी पावर कुछ आ जाएगा, मान लीजिए e टू दी पावर सिग्मा की वैल्यू कुछ नेगेटिव रख लीजिए, ठीक है। लेकिन इनफाइनाइट तो नहीं रख सकते ना, क्योंकि वैल्यू तो सिर्फ -t/2 से t/2 है, एट मैक्स वैल्यू माइनस कुछ भी जाएगा। तो ये आप रख दीजिए, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा तो e टू पावर सिग्मा t आ जाएगा, कुछ भी सिग्मा की वैल्यू आप मान लीजिए, क्योंकि नेगेटिव है तो नेगेटिव की वैल्यू आप कुछ रख दीजिए। तो लेट सपोज कि हमने नेगेटिव रखा था, तो इसकी वैल्यू कहाँ से कहाँ आ जाएगी, अगर आप यहाँ से देखें तो ये वैल्यू कुछ ऐसे आ जाएगी, ठीक है। अल्टीमेटली है ना, सिग्मा की वैल्यू नेगेटिव है तो आप इसको कंसिडर कर सकते हैं कि ये वैल्यू जब नेगेटिव है तो नेगेटिव नेगेटिव प्लस हो जाएगा, तो ये वैल्यू e टू द सिग्मा t ऐसा बढ़ता चला जाएगा। लेकिन कहीं ना कहीं ये इंटीग्रेट तो हो सकता है ना, ऑब्वियसली बात है। अगर आप इस सिग्मा इज इक्वल टू 0 देखें तो ऑब्वियसली ये बराबर आ जाएगा, और अगर आप सिग्मा इज ग्रेटर देन 0 तो ये कम होता चला जाएगा, तो ये ऐसा कम होता चला जाएगा। तीनों केस में अगर अपन देखें तो ये तीनों केस में एब्सोल्युटली इंटीग्रेबल है, मतलब इसका जो ये है, फॉर ऑल वैल्यू ऑफ सिग्मा, ठीक है, या फिर आप बोल सकते हैं रियल पार्ट ऑफ एस, ठीक है। आप दिस क्या है, ये एफ ऑफ टी जो आपका सिग्नल आया था, ये
गेट पल्स, ठीक है। इट इज ये फॉर ऑल वैल्यू ऑफ सिग्मा एफ ऑफ टी इज फाइनाइट है, फाइनाइट, ठीक है। एंड आपका फाइनाइट इन टाइम ऑल्सो, फाइनाइट ड्यूरेशन भी है और फाइनाइट एम्पलीट्यूड भी है, ठीक है। एम्पलीट्यूड भी फाइनाइट है, जिसकी वजह से आप ये बोल सकते हैं कि इसका आरओसी हर सिग्मा वैल्यू पे कन्वर्ज कर रहा है। तो इसीलिए क्वेश्चन स्पेशली पूछा गया था। इसका कंक्लूजन यही है कि आर ओ सी, ठीक है, आर ओ सी ऑफ ऑफ फाइनाइट, या आप इसको ऐसा बोल सकते हैं कि आर ओ सी ऑफ लाप्लास ट्रांसफॉर्म ऑफ फाइनाइट ड्यूरेशन एंड फाइनाइट एम्पलीट्यूड सिग्नल, ठीक है, इज जनरली एंटायर एस प्लेन। पूरा एस प्लेन में ही ये वैल्यू एग्जिस्ट करेगा, कोई दिक्कत वाली बात है ही नहीं इसके लिए, तो आप इसको इतना मान सकते हैं, ठीक है। इसके बाद चलिए मैं आपको ना कुछ ऐसे क्वेश्चन भी बताता हूँ जो आपको लगेगा कि इसका तो हम फोरियर ट्रांसफॉर्म लाप्लास ट्रांसफॉर्म निकालते थे, बट वो होता नहीं है एक्चुअली, वो यूनिलेटरल ट्रांसफॉर्म के लिए होता है। देखिए, आपको अगर मैं बोल दूँ एफ ऑफ टी इज इक्वल टू 1, एफ ऑफ टी इज इक्वल टू 1, और आपको इसको निकालना है लाप्लास ट्रांसफॉर्म, तो आप कैसे निकालेंगे? देखिए, 1 को आप 1 है ना, 1, ये 1 है, तो इसको आप ये भी लिख सकते हैं, 1 को u ऑफ टी प्लस u ऑफ माइनस टी लिख सकते हैं। u ऑफ टी का लाप्लास ट्रांसफॉर्म क्या होता है? 1/s, और u ऑफ माइनस टी का क्या कितना होता है? -1/s। वैल्यू कितना आ गया? 0। तो लाप्लास ट्रांसफॉर्म निकल सकता है क्या? और इसका अगर आप आरओसी भी देख लीजिए ना, u ऑफ टी का आरओसी कितना होता है? इस तरफ। u ऑफ माइनस टी का आरओसी कितना होता है? इस तरफ। क्या दोनों कन्वर्ज कर रहे हैं? जब आरओसी कन्वर्ज नहीं करते हैं, ठीक है, इंटरैक्ट नहीं करते हैं, इसका मतलब है कि इसका लाप्लास ट्रांसफॉर्म कभी भी डिफाइंड नहीं हो सकता, नॉट डिफाइंड। ये चीज को याद रखिएगा। कभी भी जब आरओसी ना आपस में कन्वर्ज नहीं करते हैं, तो जब दो साइडेड सिग्नल होते हैं, तो आप ये मान के चलिए कि लाप्लास ट्रांसफॉर्म उसका डिफाइन नहीं हो सकता। आपको मैं दूसरा एग्जांपल भी देता हूँ। आपको मैं बोलता हूँ एफ ऑफ टी इज इक्वल टू ई टू द पावर माइनस ए मॉड टी, ये है। अब आपको मैं बोलूँ कि देखिए इसका लाप्लास ट्रांसफॉर्म निकालिए, तो आप इसको ऐसा बोल सकते हैं ई टू द पावर माइनस ए ऑफ टी यू ऑफ टी, और इसको आप ऐसा भी बोल सकते हैं ई टू द पावर माइनस, इसको आप बोल सकते हैं ई टू द पावर माइनस ए ऑफ माइनस टी यू ऑफ माइनस टी, ये आप बोल सकते हैं। इसको आप ऐसा बोल सकते हैं कि ई टू द पावर माइनस ए टी यू ऑफ टी प्लस ई टू द पावर ए टी यू ऑफ माइनस टी, जिसका आप लाप्लास ट्रांसफॉर्म निकाले तो आप कैसे निकाल सकते हैं? 1/s प्लस ए, और इसका आप निकाल सकते हैं 1/s माइनस ए, है ना। ये आप कर सकते हैं। अब इसका देखिए, तो चलिए अपन वो बनाते हैं, आरओसी बनाते हैं। तो आरओसी है एट एस इज इक्वल टू माइनस ए, और यहाँ पे एट एस इज इक्वल टू ए। इसका कैसा है? राइट हैंड साइडेड है, तो इसका आपका राइट हैंड साइडेड मिलेगा, और इसका है लेफ्ट हैंड साइडेड, तो इसका लेफ्ट हैंड साइडेड मिलेगा। तो ये तो बिल्कुल लाप्लास ट्रांसफॉर्म इसका एग्जिस्ट करता ही करता है। तो इसका लाप्लास ट्रांसफॉर्म ये हमारा डिफाइन हो गया, जिसको आप और वो कर सकते हैं। आप इसको, अच्छा आई थिंक ये, हाँ ये माइनस होगा, इसको मैं लिख देता हूँ, सॉरी, हाँ ये। तो इसको आप इसको कैसे लिख सकते हैं? एस एस तो कैंसिल हो जाएगा, -2a/s² माइनस a²। अच्छा देखिए, ये आ गया फाइनल लाप्लास ट्रांसफॉर्म ऑफ आपका e टू द पावर माइनस ए मॉड टी का, है ना। इसका आपका लाप्लास ट्रांसफॉर्म ये आ गया। अब आप देखिए, जो कि ये इट इज इन्वॉल्विंग जे ओमेगा एक्सिस, इट इज इन्वॉल्विंग जे ओमेगा एक्सिस। तो आपको पता है क्या कि लाप्लास ट्रांसफॉर्म से फोरियर ट्रांसफॉर्म कैसे निकाला जाता है? भाई आपको मैंने पहले भी बताया कि फोरियर ट्रांसफॉर्म इज नथिंग बट अ स्पेशल केस ऑफ लाप्लास ट्रांसफॉर्म व्हेन लाप्लास ट्रांसफॉर्म इज कंसीडर्ड फॉर सिग्मा इज इक्वल टू 0। देखिए s इज इक्वल टू सिग्मा प्लस जे ओमेगा होता है ना, होता है। अब अगर हम सिग्मा इज इक्वल टू 0 वैल्यू ले लें, तब s इज इक्वल टू जे ओमेगा हो जाएगा, है ना, सिंपल। और यही तो कंडीशन है फोरियर ट्रांसफॉर्म का। फोरियर ट्रांसफॉर्म इज अ स्पेशल कंडीशन ऑफ लाप्लास ट्रांसफॉर्म व्हेन सिग्मा इज इक्वल टू 0। तो हम इसको ऐसा लेते हैं कि इसमें ना s की वैल्यू में सिर्फ s इक्वल टू जे ओमेगा रख देते हैं, सिग्मा वो 0 कर देते हैं। तो ये आ जाएगा -2a/s²
जे ओमेगा स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर, और इसको आप सॉल्व कर सकते हैं, इसको आप लिख सकते हैं माइनस 2a बाय जे स्क्वायर माइनस 1 होता है, तो माइनस ओमेगा स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर, ठीक है। ओके, तो इसको हम फिर क्या कर सकते हैं, माइनस को कॉमन ले लें तो हमारा आ जाता है 2a बाय ए स्क्वायर प्लस ओमेगा स्क्वायर, और ये होता है e टू द पावर माइनस ए मॉड टी का फोरियर ट्रांसफॉर्म। अब देखिए, आप को याद होगा कि हमने इसका फोरियर ट्रांसफॉर्म इन द लास्ट मॉड्यूल वी हैव कैलकुलेटेड इट्स फोरियर ट्रांसफॉर्म, है ना, और नाउ वी हैव कैलकुलेटेड इट्स लाप्लास ट्रांसफॉर्म आल्सो, and from Laplace transform also Fourier transform can be calculated by putting the value of sigma is equal to 0। तो ये कितना आसान हो गया, क्योंकि अगर हमको एक we are studying the generalized transform, so for a particular case we can calculate, लेकिन ये तब हो पाया ना जब आपका ये j ओमेगा एक्सिस को इसका ROC इंक्लूड किया। अगर ROC इंक्लूड ही नहीं करता j ओमेगा एक्सिस को, तो we were not able to calculate this, ये ऐसा नहीं हो सकता। इसीलिए ये सारे प्रॉपर्टीज आपको जानना बहुत ज़रूरी था, है ना। ठीक है, तो यहाँ तक के सफ़र आज था। इसके बाद हम लोग नेक्स्ट लेक्चर में इन्वर्स लाप्लास ट्रांसफॉर्म पढ़ेंगे, ठीक है। इन्वर्स लाप्लास ट्रांसफॉर्म पढ़ने के बाद हम लोग कुछ और प्रॉपर्टी देखेंगे कि लाप्लास ट्रांसफॉर्म की प्रॉपर्टी क्या है, और उसका कन्वोल्यूशन प्रॉपर्टी, टाइम डिफरेंशिएशन प्रॉपर्टी, और फाइनली हम लोग इनिशियल वैल्यू थ्योरम और फाइनल वैल्यू थ्योरम के साथ क्लोज करेंगे। तो लाप्लास ट्रांसफॉर्म में भी अगर सब कुछ ठीक चला तो नेक्स्ट क्लास में हम लोग लाप्लास ट्रांसफॉर्म क्लोज करके फोरियर जेड ट्रांसफॉर्म की तरफ आगे बढ़ेंगे, ठीक है। तो इस लेक्चर के लिए इतना ही काफ़ी है। इफ़ यू हैव लाइक द वीडियो then please do hit the like button, and if you have not subscribed the channel, please subscribe it so that you will get the latest notification of the classes, and share it with the needy students who are in need, who are facing financial problems, and who are not able to go for big coaching centers, so they can at least study from these video lectures, okay। For this lecture this much only. Tata, bye bye, see you, have a good day, jai hind।